डियर पेशेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अदनान फ़ारूक है और आज का हमारा टॉपिक है इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड वेट लॉस। एंड ऑल्दो मैंने जब मैसेज किया आपको तो उसमें आई वाज थ्रोइंग इन अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर, बिकॉज जब वेट लॉस की बात आती तो आई एम ऑलवेज जस्ट एडिंग अ बिट ऑफ ह्यूमर एंड ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ सार्केज़म, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो अंदर की कैफियत होती है उसको मैं आपको चाह रहा होता हूँ कि आप क्वेश्चन करें। नो, आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट। सो आज की जो वीडियो है, I prepared some very interesting points about weight loss, and especially since December, January is around the corner. ये ऐसे महीने होते हैं जिसमें सारा साल इंसान इंतज़ार करता है और उसकी तैयारी करता है कि मैंने वेट लूज़ करना है, I want to look my best. Nothing wrong with that approach, but nothing wrong with that thought, but the way we approach it, that is where the problem is. But we'll talk about that. So let's do a little bit of housekeeping. The session, as we know, is I think approximately 35 minutes. आपके सवालात, and I hope that you will have questions. Please hold off your questions till the end of my presentation, and then we can entertain your questions. And I do hope कि आपके जो सवालात हैं इस presentation के बाद काफ़ी सारे होंगे, because if you can go through this presentation from start to finish with focus, and if you really want to learn, then it will change the game for you. That is my personal guarantee. Okay, so let's begin. So I've got 5 points for you, things that you really need to take into consideration, especially considering that we are dealing with thyroid, we are dealing with inflammation, we are dealing with even adrenal exhaustion to some extent, or maybe to a greater extent. So when you throw all of these things in the mix, weight loss becomes very difficult, and that is why I prepared these 5 points for you. और एक bonus point है जो मैं end में share करूँगा आपके साथ. So let's begin. पहला ये है कि when we are talking about weight loss, we are invariably saying to ourselves that when I have a medical condition, then I need to look at things differently. So I cannot just be counting my calories कि जी मैंने बस calories का plus minus कर लिया, मैंने अपनी intake को कम कर दिया और expenditure को या calories out को मैंने बढ़ा दिया तो उस differential से मुझे weight loss मिलेगा. ऐसा नहीं होता, especially when there are health issues. So the first thing you want to do is, when we're talking about weight loss in this context, you want to promote detox, or you want to enhance your detox capabilities. Detox क्या होता है कि body is taking in a lot of toxic material from the environment, toxic thoughts, that's the food that we eat, उसके अंदर जो pesticides use हुए हैं, the aerosols that we use, the toothpaste that we use, and so on and so forth. So the liver is working literally overtime to help in detoxification. और जब ये टॉक्सिक बिल्डअप हमारी डिटॉक्स की कैपेबिलिटी से एक्सीड कर जाता है, दैट इज़ वेयर डिजीज रियली सेट्स इन. दैट इज़ वेयर योर बॉडीज फंक्शन स्टार्ट टू शट डाउन. दैट इज़ व्हेन लिटरली इवन सो मच सो कैंसर सेल्स भी एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं. सो लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्ट टू गो साउथ फॉर अस. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज promote detox capabilities. और detox capabilities में क्या है कि we are talking about जो body के अंदर detox pathways हैं उनको हम improve करने की कोशिश कर रहे हैं. So the first one would be your excretion, जो आपकी defecation होती है, that you need to poop once a day, 1 to 3 times a day. So if you're not doing that, that could come into some kind of or a mild form of constipation. बहुत से लोग ये confusion में होते हैं कि हम दिन में 2 दफ़ा अगर हम washroom चले गए हैं, if you've defecated twice a day, that is some kind of problem. No, that's actually healthy. ठीक है. सो एक तो चीज़ डिटॉक्स के अंदर ये आती है. दूसरी चीज़ दैट यू नीड टू यूरिनेट अ लॉट. यू नीड टू हेल्प योर, बिकॉज किडनीज भी डिटॉक्स में हेल्प करती हैं. सो दैट मीन्स you need to drink water or some kind of liquid that we also add into your program. आप देखेंगे अगर उसको डिटेल में तो हमने पानी का भी लिखा होता है, कई जगह पे इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक का लिखा होता है, आपकी डिटॉक्स स्मूदी लिखा होता है. So what we're trying to do also is to promote your detox pathways through urination. फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है is the sweat. Now sweating is detoxification through one of the largest organs in the human body, which is the skin. और skin से detox करने का मतलब क्या है कि हम sweat करें. और sweat करने का हमारे एक अजीब सा तस्वर है कि we think sweating is only if you go to the gym and only if you मतलब एक structure, एक time है
कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, it does not necessarily have to be the case. You could be going out, जिस तरह हमारा मौसम होता है, if you're in Pakistan, then you will see that you don't need to do much, you'll just sweat automatically. गोरों को infrared saunas के अंदर जाना पड़ता है if they're trying to detox, but हमारे पास ये automatic facility है कि हम detox कर सकते हैं through sweating. और जब आप अपनी leisure walk करते हैं, thyroid support walk जो आपके program में लिखी हुई है, you're already doing that. So you need to get outdoors. You need to come out of the box. ये जो एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जा रहे हैं, उसके बीच में कहीं ना कहीं आपका आउटडोर होना चाहिए जिसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा स्वेट कर रहे हैं. एंड द फोर्थ थिंग फॉर इन टर्म्स ऑफ डिटॉक्स पाथवेज इज प्रोमोटिंग द लिवर. और लिवर को प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. आपने सप्लीमेंट्स में देखा है कि हम कभी मिल्क थिसल दे रहे होते हैं. हमारे जो थायराइड सपोर्ट वाली जो प्रोडक्ट है उसके अंदर डैंडलाइन भी डला हुआ है. सो यूर ईटिंग फूड्स लाइक रेड मीट ले रहे हैं जिसके अंदर आपको कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो लिवर को सपोर्ट कर रहे हैं. आप कुछ ऐसे ग्रीन्स खा रहे हैं जो अगेन लिवर को सपोर्ट कर रहे हैं. सो बीटरूट का चुकंदर का डला होना. सो ये सारी चीज़ें हैं कि आपके डिटॉक्स पाथवेज को सपोर्ट कर रही हैं. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू व्हेन यू आर एमिंग वेट लॉस एंड यू आर एमिंग वेट लॉस इन द राइट वे. The second thing regarding weight loss is a phased approach. Phase 1, phase 2. I don't know how much of my staff has educated you on this concept. इसका मैंने थोड़ा सा introduction तो आपको पहले दिया है कि we are looking at 2 phases when specifically talking about weight loss, which means कि हमारा phase 1 is just centered around health. देखिए बात सिंपल सी है. अगर आपके थायराइड के अंदर मसले हैं और most people have subclinical issues और some kind of some pattern of hypothyroid कि जिसके अंदर या तो आपका TSH compromised है या आपकी free T3 की production compromised है या आपकी autoimmunity का मामला है. Something could be going wrong, right? So जब आपके symptoms इतने ज़्यादा हैं जो indicate कर रहे हैं कि आपको IBS का मामला है, whatever it is, then your first priority is to bring your health to a minimum acceptable level. ठीक है. Phase 1 के अंदर हम कोई कैलोरी काउंटिंग नहीं कर रहे, कोई हम वेट लॉस की बात नहीं कर रहे. हमने फेज 1 के अंदर कंप्लायंस करनी है. वी नीड टू improve our compliance to what the program is saying. How many meals, how many snacks, what kind of vitamins, whatever it is that you have to follow through, because if you don't then we cannot go into phase 2. because हमारे phase 2 की प्रोटोकॉल जिसमें वेट लॉस को हम शुरू करते हैं वो बड़ी क्लियर है. उसमें हम आपकी कुछ सिलेक्ट लैब्स लेंगे, हम आपको रीटेस्ट करेंगे और आपके सिम्टम्स को चेक करेंगे. अगर ये इंफॉर्मेशन हमें बताती है कि योर बॉडी is at an acceptable level to start your weight loss journey, then and only then we'll start. Because make no mistake, अगर आप अपने compromised thyroid और adrenal function के साथ, inflammation के साथ अगर आप weight loss attempt करते हैं तो you are only making your body weaker. You're building the grounds for more disease and worse health, which is what happens to people. कि वो उनको पता ही नहीं होता, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको कहता है कि जी कोई भी चीज़ हो उसमें सिर्फ कह दिया जाता है कि वेट लूज करें. वेट लॉस लोगों को वेट लॉस का क्या तरीका पता है? कम खाओ और एक्सरसाइज ज़्यादा करो. वो करते हैं, बॉडी और वीक होती है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज और होती हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, एड्रीनल्स और कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, थायराइड और कमज़ोर होता है, बॉडी बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इन्फेक्शंस, आपकी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है. सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स स्टार्ट टू हैपन. सो दैट इज़ वाई यू ऑलवेज नीड टू सेपरेट योर वेट लॉस इनटू 2 phases. Phase 1, just get your health at a minimum acceptable level. मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ सही होनी चाहिए, बट एक acceptable level होता है that only we can determine and we'll tell you. So you need to focus on phase 1, and then once phase 1 is complete, then and only then you go on to phase 2. ये आपका second point हो गया. The third point regarding weight loss, and when you want to do weight loss the right way, is what we called NEAT. It's an acronym which means NEAT, non-exercise activity thermogenesis. ठीक है तो ये बड़ा माउथफुल सा, बड़ी टेक्निकल सी टर्मिनोलॉजी है और इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हो रही है. अगर आप ये लिखेंगे ना
गूगल पे जाके तो आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी. ऑल दे आर सेइंग इन सिंपल वर्ड्स इज दैट यू शुड हैव सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द डे. Don't designate one time for exercise. In fact, you should have multiple times के जिसके अंदर आप थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी मतलब घर का कोई काम कर रहे हैं. You need to remain physically active, and one of the best ways to remain to do neat or to be physically active is walking. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने अगर कोई चीज़ करनी है ना तो हमने बिल्कुल उसको इंतहा पे लेके जाना है. अगर हमने वॉक भी करनी है तो हमने ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, हमने आधे घंटे के अंदर 10,000 स्टेप्स करने हैं. सो एक्सट्रीम मेजर्स होते हैं. फिजिकल एक्टिविटी हैज़ नथिंग टू डू विद इंटेंसिटी. इट्स अ लो ग्रेड एक्टिविटी और जिसके अंदर आप सिर्फ अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखते हैं. एंड दैट्स व्हाट द गोल हियर इज. और इसीलिए आप देखेंगे कि मोस्ट पेशेंट्स विल बी गिवन what we call thyroid support walk, and that is a form of non-exercise thermogenesis. That is exactly what we're trying to do. So let me put this into perspective yet again. The third point relating to weight loss is that you do physical activity throughout the day, छोटे छोटे spurts में. जिस तरह मेरा क्या चक्कर होता है कि मैं सुबह एक वॉक करता हूँ, फिर ऑफिस के टाइम पे अब जिस तरह ये प्रेजेंटेशन ख़त्म होएगी तो मैं बाहर जाके थोड़ी सी 10 मिनट की या 15 मिनट की वॉक करूँगा. उसका एक और भी बेनिफिट होता है कि जब आप अपनी डे टू डे रूटीन के अंदर इतने इनग्रॉस्ड होते हैं, सो यू नीड टू प्रेस द पॉज बटन. इट गिव्स यू पर्सपेक्टिव, इट हेल्प्स यू रिकवर, इट हेल्प्स यू रिकूप. सो मल्टीपल बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस फिजिकल एक्टिविटी, एंड यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट कि जी मैंने एक्सरसाइज करूँगा तो वेट लॉस होएगा. एक्सरसाइज इज चेरी ऑन टॉप, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है. सो दैट्स द थर्ड पॉइंट. नंबर 4, रिमूविंग स्नैक्स फ्रॉम योर प्लान. ठीक है, जब आप जब भी खाते हैं, whether it be an apple, whether it be whatever you're having, you could be having the healthiest snack, लेकिन आप जो भी चीज़ खा रहे हैं उससे आपकी इंसुलिन बम्प अप हो रही है. So these insulin spikes are related to fat storage and inflammation. So what we are trying to do in phase 2, not in phase 1. In phase 2 we will be doing this when you arrive at phase 2. कि हम क्या करेंगे कि आपके जो स्नैक्स हैं वो हम निकाल देंगे. So अगर आप देखेंगे तो आपके इस वक्त phase 1 के प्लान के अंदर you have a 6-hour gap between meals. So breakfast and lunch 6-hour gap, 5 to 6 hours. Then again from lunch to dinner again 6 hours. So और बीच में स्नैक्स हमने छोटे छोटे इंसर्ट किए हैं. वो इसलिए किए हैं कि हम आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, अब बात यह है कि अगर आपने एक मील साइजेबल नहीं खाया, अगर आपने एक मील पेट भर के नहीं खाया, अगर आपने उस मील के अंदर वो मैक्रोज नहीं थे, उतनी प्रोटीन फैट्स नहीं थे जो कि यूजुअली लोग मिस आउट करते हैं. कार्ब्स पे लोगों का या तो बहुत ज़्यादा रुझान होता है या बहुत ज़्यादा ही डरते हैं. सो वी हैव दिस रियली वियर्ड काइंड ऑफ अप्रोच दैट वी हैव टुवर्ड्स न्यूट्रिशन. तो आपके जब ये एक मील आपको 6 घंटे तब चलाएगा जब आपने उस मील में अपनी बॉडी की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया होगा. अगर आप उसमें डर डर के खा रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि वो मैं नहीं खा सकती, मेरी बॉडी नहीं आती, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, ठीक है, आपको आदत नहीं है इतना खाने की, बट सूनर और लेटर यू नीड टू गेट इन द हैबिट, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. सो we can only move to phase 2 and we can only remove your snacks if your breakfast was sizable enough, if your lunch was sizable enough, if your dinner was sizable enough. और वो आपकी quantities लिखी हुई है जिसमें majority, I would say as much as 9 out of 10 people will say to us, मैं तो इतना खा ही नहीं सकती, आपने क्वांटिटी इतनी ज़्यादा दे दी है. आपकी बॉडी को सामने रखते हुए हमने वो क्वांटिटीज़ दी हैं और उसकी लॉजिक जो है वो अब आपको समझ में आ गई है. दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव. ठीक है जी. उसके बाद नंबर 5th and the second last point, that again sticking to nutrition. So we're talking about healthful weight loss, we're talking about boosting metabolism, we're talking about health improving and body getting in shape, all the good stuff that you want, but उसकी कुछ ना कुछ requirements होती हैं. So the 5th point is increasing protein and fats intake. प्रोटीन की इंटेक आपको बढ़ानी है. Average human being requires about 80 to 100 grams of protein per day. और मेरे जितने मैंने पेशेंट्स को देखा है पिछले सालों के अंदर, आई वुड कॉल इट डेकेड्स,
कि मैंने जितनों को देखा है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ख़वातीन की जो कंजम्पशन है प्रोटीन की, दैट डज़ नॉट गो अबव 15 to 20 ग्राम्स पर डे। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है कि आपका अगर आपको सिर्फ हेल्थ को मेंटेन करना है, आपका फिटनेस और वेट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है, आपके एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है, यू शुड बी कंज्यूमिंग 0.7 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। तो आप इफ यू डू द मैथ, कम से कम भी आप लगाएंगे ना तो ये 60-65 ग्राम्स बन जाएंगे। और जितनी हम प्रोटीन खा रहे हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। सो वी नीड टू रेक्टिफाई दिस कि मुझे, और उसकी जो मेन सोर्स है प्रोटीन की वो आपकी नंबर 1 रेड मीट्स हैं, एंड फॉर्चुनेटली थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू ईट। या तो उसमें यह है कि मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, विच इज़ अगेन इट हैज़ बिन डिसप्रूव्ड कि इसका कोलेस्ट्रॉल से कोई ताल्लुक नहीं है, या मुझे उसकी टेस्ट नहीं पसंद, ये नहीं पसंद। जिस प्रोटीन सोर्स को आप खा रहे हैं ना, जो सुबह दोपहर शाम रात आप चिकन खा रहे हैं, दैट इज़ प्रमोटिंग कैंसर एंड हार्मोन इम्बैलेंस। कि अगर पाकिस्तान के अंदर PCOS और इनफर्टिलिटी और बहुत से ऐसे हार्मोन रिलेटेड इश्यूज अगर सामने आए ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चिकन का हाथ है, और ये कौम हर खाने पे चिकन खाती है। सो वी आर ट्राइंग टू मूव यू अवे फ्रॉम दैट। सो मल्टीपल बेनिफिट्स हेयर। दूसरी चीज जो आपको अपनी न्यूट्रिशन के अंदर इंप्रूव करनी है, दैट इज डाइटरी फैट्स, एंड आई हैव बीन सेइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ईटिंग फैट डज नॉट मेक यू फैट, ईटिंग फैट डज नॉट मेक यू फैट। ये इसको कहीं लिख लें, उसको रिपीट करते रहें। आपको ऑलिव ऑयल चाहिए, आपको कोकोनट ऑयल चाहिए, आपको देसी घी चाहिए, आपको आलमंड्स चाहिए, आपको पीनट्स चाहिए, आपको कैश्यू नट्स चाहिए, आपको कोकोनट चाहिए। कितनी सोर्सेज हैं जो आपको फैट से मिलती हैं और आपकी प्लान के अंदर डली हुई है। लेकिन द फर्स्ट थिंग दैट वी गेट फ्रॉम पीपल, हाय आपने दे दिया तेल को ऊपर से डाल के खाना है, भाई आपकी हांडी में जो ऑयल डल रहा है वो इनसफिशिएंट अमाउंट है। इसलिए हम आपको एक तो गुड सोर्सेज दे रहे हैं जो कि प्रेडोमिनेटली या तो सैचुरेटेड फैट्स हैं, विच अगेन पीपल थिंक इट्स बैड फॉर यू। इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एंड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके हार्मोन्स का रॉ मटेरियल होता है। सो अंडरस्टैंड द लॉजिक, ठीक है। सो आपको सैचुरेटेड फैट्स दी जा रही हैं और दूसरी तरफ आपको ओमेगा 3 फैट्स दिए जा रहे हैं। आपको बीन ऑयल से निकाला जा रहा है जो कि ज़्यादातर ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैट्स हैं। सो आप सेंस कर रहे हैं कि आई एम रियली overburdening you or overwhelming you with a lot of education. Why? Because I want you to understand that there is logic in everything that we're saying. It's not just कि जी ऐसे कर लो. It's not about opinions. This is hardcore science. So the fifth point was प्रोटीन और फैट्स की इनटेक। कार्ब्स को तो आप मैनेज कर ही लेंगे, हालांकि कार्ब्स के अंदर भी मैं यह बात बता दूं कि देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन हियर अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, दैट वी थिंक के कार्ब्स नहीं खाने चाहिए। It's not about the carbs, it's about the quantity of carbs, it's about the timing of carbs, and it is about what kind of carbs you're having. हम उसको usually अपनी लैंग्वेज में कहते हैं low GI carbs, ऐसे carbs जिससे आपकी इंसुलिन इतनी स्पाइक नहीं होगी। सो हर चीज़ के पीछे एक साइंस है। आपको क्या करना है, या तो आपको सवाल पूछना है ताकि आपके लॉजिक में वो बात पड़े, और अगर सवाल नहीं करना चाह रहे तो देन जस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, बिकॉज द गोल इज कि हम आपको आपके गोल पे अचीव करवाने के लिए हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आप जल्द अचीव करें। अगर आप नॉन कंप्लायंस देंगे तो आप रिजल्ट कैसे अचीव करेंगे, राइट। द लास्ट पॉइंट, द सिक्स्थ, द बोनस पॉइंट इज हाउ, ये आप अज्यूम कर लेते हैं कि आपने सारे पॉइंट्स कर लिए हैं। The sixth is, how do you check progress? So if we're just talking weight loss, my question to you is, what instrument will you use to track your progress? और usually 99% बल्कि 110% लोग कहेंगे हम तो वेट स्केल यूज करते हैं। वेट स्केल is the most deceiving instrument used in the medical field or the fitness field, I should say. It is totally nonsensical in my opinion, and it should be used as it should not be relied on primarily. It should be a secondary piece of information. क्यों कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर बढ़ता है, आप even if you're approaching PMS, even if you are somebody who has gone to into menopause, फिर भी आपके अंदर बॉडी वाटर ऊपर नीचे होता है बिकॉज ऑफ फूड इंटॉलरेंसेज, आपके एड्रीनल्स ऊपर नीचे चलते हैं तो उससे भी बॉडी वाटर ऊपर नीचे होता है। सो you cannot and you should not check your body shape, which is your main goal, to use the weight scale to check how you're making progress. और मैं यूजुअली लोगों से सवाल करता हूँ कि लेट्स से आपका गोल क्या था, वो यूजुअली कहते हैं जी आई एम अ पेयर शेप, मुझे अपने हिप्स और थाइस कम करने हैं। तो
समझ में ये है कि आपका मेन गोल था कि आपने हिप्स और थाइस कम करने थे। तो लेट्स से आपका वेट है 80 केजीज, लेट्स गिव यू एन एग्जांपल। आपका अगर 80 केजी था और आपने डाइटिंग की, वट एवर आपने एक्सरसाइज ज़्यादा की, आपका वेट 80 से 74 केजी पे आ जाता है, यू लूज 6 केजीज, राइट। बट वट हैपन्स इज कि आपका मुंह बहुत अंदर चला जाता है, आपकी चेस्ट बहुत कम हो जाती है और आपकी अपर बॉडी और शोल्डर्स भी बिल्कुल श्रिंक कर जाते हैं, और इन चीज़ों के श्रिंक होने से आपकी लोअर बॉडी और चौड़ी लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्या आप इस सिनेरियो में खुश होएंगे? मेजॉरिटी खवातीन का जवाब आता है कि नो, वी विल नॉट बी हैप्पी। मैंने कहा व्हाई विल यू नॉट बी हैप्पी? बिकॉज एक तरफ आप मुझे कहती हैं कि मैंने वेट स्केल के अलावा कुछ नहीं देखना, तो जब आपका वेट स्केल पे 6 केजी कम हो गया देन यू शुड बी हैप्पी, बिकॉज कहीं से भी वेट कम हो गया है। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैंने वेट लूज करना है और सिर्फ उन जगहों से उस प्रोपोर्शन में लूज करना है जिसमें मैं चाह रही हूं, और वो मुझे वेट मशीन बताएगी। ludicrous, it is does not make sense, it is utterly bullshit. Sorry to use the word. So what you need to do is you need to use your measuring tape. आप अपनी मेजरिंग टेप यूज करेंगे, आप अपने बॉडी को मेजर करेंगे और बड़े ध्यान से मेजर करेंगे, और जब ये आपके पास मेजरमेंट्स आ जाएंगी उसके साथ आपकी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन अगर आपने यूज करनी है, then and only then that will be your weight scale. So your primary source of information is the measurement that you will do, and you will do it very carefully, because इसके अंदर थोड़ा सा भी फर्क आता है that becomes a problem, right? So that becomes your primary source of information. Secondary source आपकी जो आ जाती है, जिसको आप इतना rely नहीं करते, वो आपका weight scale आ जाता है, and that's how you go about it. So और वेट को चेक करने का एक और भी तरीका है. सो इफ यूर नियरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इफ यूर इन योर PMS, देयर आर सर्टेन डेज जिसमें बॉडी नेचुरली वाटर प्रोड्यूस करती है, सो यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दोज डेट्स. ठीक है, जैसी तरीका उसका क्या होता है, वैसे तो बहुत सारी डिटेल है, बट लिटरली व्हेन यू आर इन योर 5th और योर 6th डे आफ्टर योर फ्रॉम योर फर्स्ट डे ऑफ योर मंथली साइकिल, दैट्स व्हेन यू चेक योर वेट. सो हम उसको कहते हैं कि आपका एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें आपकी बॉडी वाटर सबसे कम हुआ होता है. सो if I sum all of this presentation up, the first thing I talked about was okay, we need to lose weight in a healthy way, because we are dealing with thyroid, adrenals, gut issues, multiple problems. You've got ton of symptoms that you want to address. So if you ignore all of these signs and if you just directly go towards कि मैंने calories कम खानी है और मैंने exercise ज़्यादा करनी है, you are asking for trouble. So the 5 points are: number 1, promote detox capabilities. अपनी body की को detox करने में help करें. वो तरीका क्या, वो मैंने आपको बता दिया. The second thing is the phases, the phase 1 and the phase 2. The more you comply, the better or the faster we can move you to phase 2. Number 3, non-exercise activity thermogenesis, which is physical activity. That was number 3. Number 4, removing snacks, but in phase 2, not in phase 1. So what you need to do in phase 1 is you need to eat according to your plan, the quantities. Number 5, increasing proteins and fats intake and not being scared of carbohydrates. And the 5th, 6th and the bonus point was that you will need to check your progress by carefully measuring yourself and celebrating even the half inch that you've lost, because a lot of women will say कि अदनान मैंने अपने 6 पॉइंट्स चेक किए, मैंने अपनी आर्म, चेस्ट, अपने बेली बटन, हिप्स को, थाइस को चेक किए और सारों के अंदर जो है ना आधा इंच लूज हुआ है, ओवरऑल सिर्फ 5 इंच लूज हुआ है. I mean seriously, are you kidding me? In 4-6 weeks you've lost about 5 inches, your health has gotten better, your symptoms have gone away. What more do you want? वो फिर वही बात आ जाती है ना, that you literally want Kareena in 1 mahina. That's where the joke comes in. ठीक है? So I hope this presentation has made sense. Now we can start entertaining questions.